कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. So today we are very fortunate. It is a great pleasure to all of us. Today we have with us His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. Haribol. So I would like to introduce Maharaj. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, born on 31st December 1967, came in contact with ISKCON in 1994 and joined as a full-time devotee in 1995 in Mayapur. He received Harinam initiation in 1996 and subsequently Brahman initiation in 1998 at the lotus feet of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. Then finally on Gaur Purnima 2015 he received Sannyas initiation. He served as the head of the medical department in Mayapur temple from 1996 to 2001 and as a brahmachari counselor from 1997 to 2001. In the year 2000, he completed Bhakti Shastri course and subsequently taught the same under MIHE University. In the year 2001, he was asked to serve as the Vice President of ISKCON Kolkata and served in that capacity till 2004. He was actively involved in temple management as well as youth preaching in Kolkata during 3 years. In 2004, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj started a new temple project in Ujjain, Madhya Pradesh, and appointed him as the temple president. In 2006, GVC gave him the ISKCON Global Excellence Award for significant contribution in opening a new Vedic temple in Ujjain. He served in that capacity till 2011 and is currently the co-president of ISKCON Ujjain. He has had a very active involvement in preaching youth as well as congregation to various school, colleges, villages preaching programs. He preaches in English, Hindi and Bengali in India, Bangladesh, South Africa and many other parts of world. He also established BSc Bhakti Siddhanta Saraswati Chhatravas spiritual student hostels to preach Krishna consciousness effectively to you. Under his guidance, hundreds of students and congregation members are growing in the mission of Srila Prabhupada. His uniqueness is in his humble, loving relationship with everyone who comes in his contact and his melodious Vaishnava bhajans with beautiful purpose. His future plans involve youth preaching programs in central India, developing devotee-based community, establishing Vedic education and culture for sustained community growth. So we will welcome Maharaj by loudly chanting 3 times Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. आप पीछे बैठेंगे तो सामने श्रील प्रभुपाद की जय. कितना स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर? हाँ 26 और जस्ट लगा हुआ बेस है उसमें 12. बहुत सारे स्टूडेंट हैं. हमारा मतलब हर दिन हमको कम से कम 5-6 नहीं नहीं तो और बहुत बना सकते हैं. लेकिन केवल कुक चाहिए केवल. कुक तो है भगवान की कृपा से. थोड़ा मतलब किसी भी घर में जाते तो हाउस ओनर के साथ में बहुत प्रॉब्लम है. इतना बच्चा क्यों रह रहा है? एक मकान बोला 24,000 लूँगा, 6 बच्चे रखना, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते. अभी हम लोग 5,000 रुपीज़ फीस ले रहे हैं. आज दुख की खबर सुनाने वाला हूँ क्लास के बाद में. हम लोग उसको 6,000 करने वाले हैं क्योंकि हमारा लास्ट महीने 1 लाख रुपीज़ चला गया.
इतना कॉस्टली, हर चीज़ 4 गुना रेट बढ़ गया है हमारा, लेकिन वो बेस का फीस कई साल से उतना ही चलता आ रहा है और कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। तो ये इतना रेंट इतना ज़्यादा है? हमारा इस घर का रेंट पूरा हमारा सेटअप है 60,000 रुपीज़, और बिजली बिल आता है कमर्शियल यूनिट से तो 15,000 रुपये से चला जाता है। इतना कष्ट, उसको 70,000 हर महीने केवल रेंट में जाता है। कुक को देना पड़ता है 13,000, हेल्पर को 7,000। इतना कष्ट। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृष्ण भक्ति का संस्पर्श में आया है। आने के बाद पता चलता है बाहर का भौतिक व्यक्ति के साथ हमारा कोई फर्क है, लग रहा है ना। लेकिन वहाँ पर जो है वो नहीं समझते हैं, ले तो हमारे तरह कर रहे हैं। जिस तरह पशु क्या सोचता है, मनुष्य भी एक पशु ही है, तो मनुष्य जानते हैं हमारे उनमें से फर्क है, चेतना का फर्क है। चेतना छोड़ देंगे तो एक सेम है। बंदर और मनुष्य फर्क क्या है, उनका पूछ है, हमारा पूछ नहीं है। बंदर को इस तरह बुद्धि थोड़ा कम है। तो ये जो आप ये मार्ग ग्रहण किया है, इसका आप बुद्धिमान व्यक्ति है। भक्ति ठाकुर घर में लिखता है, दुर्लभ मानव जन्मो लोभिया संसारे कृष्ण ना भजिन दुख को ही वो कहारे। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये तो हम सुना है, लेकिन इसको बहुत आदमी को बताया भी है। लेकिन कितना दुर्लभ वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितना दुर्लभ है, क्यों, क्या फैसिलिटीज है इसके अंदर, इतना दुर्लभ है। ये हम जितना जानेंगे उतना, जिस तरह एक पत्थर, उसको जो सोचेंगे नहीं सिल्वर, उतना ध्यान से उसके इस्तेमाल करेंगे। जब पता चलेगा यह सोना है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो उसी तरह हम कौन है, मनुष्य जीवन क्या है, इसका महत्व जितना समझ जाएंगे वो उतना सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है।
हमारे सुख की बात है, जो सनातन धर्म में जन्मांतरवाद हम स्वीकार करते हैं। भगवद गीता जो श्लोक शुरू होता है जन्मांतरवाद से, लेकिन अलग अलग धर्मों जन्मांतरवाद स्वीकार नहीं करते हैं। कॉमन सेंस का बात है। कोई आदमी थोड़ा गलती किया है इधर में तो अनंत काल उनके नरक में भोगना पड़ेगा, और थोड़ा अच्छा किया अनंत काल उनके स्वर्ग में रहना है, और स्वर्ग नरक के आगे कोई उनका कॉन्सेप्शन है नहीं। तो वो धर्मों का ज्ञान कितना सीमित है। लेकिन सनातन धर्म में जन्मांतरवाद से वो उसके बाउंड्री पार कर जाते हैं, स्वर्ग नरक का बाउंड्री पार कर जाते हैं। तो स्वाभाविक ये प्रश्न आना स्वाभाविक, हम आया कहाँ से कहाँ जाना होगा। ये इस तरह प्रश्न मनुष्य जीवन में नहीं आएगा तो पशु है। पशु से मनुष्य से का कोई जीवन में ये नहीं सोच सकता है हम कौन है, कहाँ चाहे। किसी को मन में ये प्रश्न नहीं आया है। बहुत बहुत बड़ा ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, लेकिन उनका चेतना पशु की तरह है। पशु नहीं समझ सकता हम कहाँ से कहाँ जाना होगा, तो पशु की तरह व्यक्ति को नहीं समझ सकता कहाँ जाना है। जीवन का लक्ष्य स्थिर नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति आर्तवाम का नर्वस सिस्टम लेकर रिसर्च करके पूरा जीवन खत्म कर दिया। क्या बात है। ठीक है, मानव जाति का मंगल करने के लिए कुछ रिसर्च कर रहा है, अच्छा है, लेकिन आप जाने वाला कहाँ है वो तो देखना चाहिए। कोई चीज़ हमें गोल ढूंढना चाहिए। मनुष्य जीवन जिस तरह फुटबॉल खेलने का गोल क्या है, फुटबॉल खेलने का गोल क्या है, फुटबॉल खेलने का गोल क्या है, गोल करना। फुटबॉल खेलना गोल क्या है, सब कुछ करो गोल नहीं करोगे तो क्या फायदा इस तरह खेलने। तो फुटबॉल खेलने के पहले आपको जानना चाहिए आपका गोल क्या है। गोल है गोल करना है, और गोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक गोल होता है खेलना पड़ेगा। खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब खेल सकते क्या, स्टेडियम में जाते हैं बोले मैं खेलूंगा, इससे चलेगा क्या। उसका संबंध जानना जरूरत है। को ऑफिस में नौकरी कोई कर सकते क्या, नहीं, उसके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इस तरह पहले संबंध जानना पड़ेगा, हम कौन जर्सी लेके खेलें, व्हाइट की रेड, कौन सा जर्सी लेके खेलेंगे। और पोजीशन भी जानना पड़ेगा कि मैं गोलकीपर कि स्ट्राइकर कि डिफेंस कहाँ पर। कोई बोले को वो आदमी हाथ से बॉल पकड़ा, मेरा पकड़ने की समस्या है, चलेगा नहीं चलेगा। उनका पोजीशन जानना आवश्यक है। और गोल पोस्ट में दो साइड गोल पोस्ट में कहाँ फेंकना वो भी जानना चाहिए। खुद का गोल पोस्ट में बार बार फेंकते हैं तो फिर मुश्किल। तो पहले खेलना शुरू होता है संबंध से, रिलेशनशिप, और इसके बाद खेलना, उसके बाद गोल करना। हर जीवन का कोई क्षेत्र में तीन चीज होता है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। संबंध जानना, वो अनुसार कुछ करना, और प्रयोजन प्राप्त करना है। तो इस तरह मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, सुख में रहना। कौन प्राणी सुख नहीं चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। और सुख कहाँ मिलता है, जो सुखमय जगह में है। जिस तरह बहुत सुख है, कहाँ क्या कर सुख होगा, आपको एक आईफोन देगा, मैक देगा, या क्या बोले 56 नंबर खाना देगा, गाड़ी देगा, और आपको आग के अंदर रहना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा करेंगे नहीं। तो सुख पाने के लिए हाँ, एयर कंडीशन घर में सब हर जगह रखेंगे केवल 5 मिनट के लिए, वो सुख है क्या। इस तरह सुख कहता है मेघेर छाया, बादल का छाया में जो ठंडा होना है उसका गारंटी कितना टाइम है। बहुत धूप है, बादल आ गया, क्या मज़ा है। लेकिन बादल कितना टाइम रहेंगे,
असली आराम कहाँ है? घर में जाओ, एसी लगा के सो जाओ बस। लेकिन बादल के नीचे वाह कितना मजा है, छाया गया। तो उसी तरह सुख यदि चाहते कहाँ पर? इस तरह की जगह जाना है जहाँ पर जगह नित्य है, सनातन है, वो जगह सनातन धाम है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है सनातन धाम भगवान के पास जाना है, ये जीवन का लक्ष्य है। क्यों? आनंद, वो आनंद और आनंद है। और जाने के लिए कुछ टेक्निक होता है, कुछ करना पड़ता है, उसका नाम प्रोसेस, पंथा। वह जानने के लिए संबंध जानना चाहिए। तो हम कौन है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, जानना है संबंध। और अविद्या है, उसलिए भक्ति करना है। संबंध, अविद्या, और लास्ट में है प्रयोजन। तो मनुष्य जीवन जब प्राप्त किया है, पहले संबंध तो जानना चाहिए, हम कौन है, संबंध जानना चाहिए पहले संबंध। तो जानने के बाद पता चला हाँ ये जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान पर जाना है। तो ये भगवान पर जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य जीवन। दुर्लभ मानुष जन्म लभिया संसारी। इस तरह दुर्लभ जन्म मनुष्य जन्म लाभ करने के बाद हाँ यदि वो अनुसार काम नहीं करेंगे, जिस तरह मान लीजिए इस तरह का मोबाइल मिला है आपको, तो उसका हाथुड़ी की तरह काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुद्धिमान का काम होगा। क्या लग रहा है? एक इस तरह मोबाइल मिला, उसका मतलब हाथुड़ी नहीं हमारी ऐसे है, इसका चौको, हाँ ये बुद्धिमान का काम होगा। हाँ। तो इस तरह यदि एक मूल्यवान वस्तु मिलते हैं, आपको 1 किलो सोना है घर पे, तो आप लोग चलो भूख लग गया भाई, 1 किलो बेगुन लेके खाओ, इसको सोना तो नहीं खा सकते हैं, इसको लो। किसी को देख भाई ये दे दे, कितना बुद्धिमान है, देखो मैं पत्थर देखे मैं बेगुन खाया हूँ। कोई तो बुद्धिमान बोलेंगे क्या? नहीं। क्या करना चाहिए उनको? उसको सोना रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख है। तो मनुष्य पशु जीवन इस तरह नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन यदि पशु की तरह करेंगे, कृष्ण भजना नहीं करेंगे, ये दुख का बात है। दुर्लभ मानुष जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजन दुख कही वो कहा। कृष्ण भजना नहीं किया है, ये दुख किसको कहेंगे? मान लीजिए वही बातें भी कहेंगे। आपको 1 किलो सोना है, वो सोना का इस्तेमाल नहीं करके 1 किलो बेंगन 1 किलो आलू खरीद करके खाया, किसको बोलेंगे बात? जब इस तरह गलती किया किसी बोलेंगे सुनेगा, जो जिसको बोलेंगे गाली देगा। तो हमारे इसी तरह दुर्लभ मनुष्य लाभ करने के बाद मनुष्य जब कृष्ण भक्ति नहीं किया, तो ये दुख किसी को नहीं कह सकता। कृष्ण ना भजन दुख कही वो कहारे। संसार संसार करे मिछे गल काल, लाभ ना हইল কিছু ঘটিল जंजाल। ये संसार संसार करके तो हम टाइम बिताया है, कुछ फायदा हुआ? इसके संसार को कहता है चर्बित चर्वण। चर्बित चर्वण अर्थात चिवा वस्तु को फिर चिबाता है। कोई गन्ना खाकर चिबा कर रस पीकर वो फेंक दिया, कोई आके फिर उठा के चिबाता है, वो कौन है? तो भौतिक जगत का भोग करना उसी तरह है। हर जीवन में देखो, कौन जोनी में नहीं है? जोन जीवन इंद्रिय तृप्ति नहीं है, हर जीवन में है। तो हमें 84 लाख जीवन हर जीवन में तो किया है, क्या मिला कुछ? फिर वही काम ही कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मोहित, आहार निद्रा भय मोहित, हर जीवन में है। उसके कहता है चर्बित चर्वण। इस तरह संसार संसार को ले मिछे गलो काल, फालतू समय नष्ट हुआ। लाभ ना हो लेते, कुछ फायदा हुआ? अभी नहीं पता चल रहा है आप लोगों को। जब बुरा पाएगा तब पता चला क्या फालतू टाइम नष्ट किया। अभी नहीं आज समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है, जिसको उम्र 60-70 साल हो गया उनको पूछ लेना एक बार। यदि वो व्यक्ति अनष्ट होगा तो संसार संसार बोले मिछे गल काल, लाभ ना हो किसी, कुछ फायदा नहीं हो। हाँ लाभ तो हुआ ही नहीं, लेकिन घोटले जंजाल। लाभ तो हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ तरह जंजाल पैदा हुआ है।
কিসের সংসারে এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বিথা दिन जाए। ये संसार छायाबाजी, छायाबाजी अर्थात सिनेमा, हिंदी में है सिनेमा शब्द का, सिनेमा के क्या बोलते हैं या उड़िया में क्या बोलते हैं? हाँ, चलचित्र, चलचित्र छाया छवि बोलते हैं क्या? छाया छवि, छाया छवि नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना, छाया छवि, छाया छवि, चलचित्र, जो चित्र चलते हैं वो चित्र है। कितना ये संस्कृत से जो भाषा है कितना सुंदर है, चलचित्र, ये चित्र है, ये फालतू चीज़ है, ये वास्तव नहीं है, ये चित्र है लेकिन चलते हैं, इतना फर्क है। ये असली वस्तु नहीं है। और इसका नाम है छाया छवि, ये छवि के छाया का है, ओरिजिनल नहीं है। तो ये संसार भी उसी तरह है, छाया छवि है, सिनेमा है। किसे संसारे छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी बिथा दिन जाए। हाँ। एक द्वीप में एक शियाल को बहुत भूख लगा, तो उनका दीवार में एक मुर्गा बनाकर हाँ चाटने लगा। कितना मजा लगा उनको? उनको इतना भूख लगा, दीवार में मुर्गा का पिक्चर बने और चाटने लगा। कितना मजा लगेगा उनको, कितना पेट भरेगा? तो छाया में जो सुख है उसी तरह है, भौतिक जगत का जो सुख है, किसे संसारे छायाबाजी प्राय। ये भौतिक जगत का क्या है? स्वप्न है। स्वप्नों में क्या होता है? स्वप्नों में क्या होता है? नींद खुलने के बाद क्या देखता है? हाँ, वो नहीं है स्वप्न। नींद खुलने के बाद तो मृत्यु भी एक प्रकार नींद है। मृत्यु, फर्क क्या है? सपनों जो देखते हैं, सोने के बाद जो शरीर में जाग जाते हैं सेम शरीर है, और मृत्यु को दूसरा शरीर में जाग जाते, इतना फर्क है। मृत्यु और थोड़ा और फर्क है, नींद थोड़ा कम टाइम और मृत्यु थोड़ा लंबा टाइम। तुरंत भी हो सकता है, तुरंत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। नॉर्मली मृत्यु थोड़ा लंबा टाइम होता है। और तो नींद और मृत्यु सेम है। तो नींद में क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। उसी तरह मृत्यु के अर्थात नींद से उठने के बाद पहले जो हो उसको क्या लगता है? स्वप्न। उसी तरह मृत्यु, नया जन्म होने के बाद पिछले जीवन का क्या लगेगा? स्वप्न। तो ये मृत्यु में जो स्वप्न देखना और नींद में जो स्वप्न देखना, फर्क क्या है? और अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है स्वप्न है, कब लगेगा? कब लगेगा? दूसरा जन्म में। दूसरा जन्म में इसको क्या लगेंगे? स्वप्न। तो ये स्वप्न और नींद में स्वप्न फर्क क्या है? नींद में जो स्वप्न, ड्रीम, स्वप्न देखता है वो अकेला देखते हैं, और यहाँ पर सबको मिलके एक साथ देखते हैं, इतना फर्क है। तो इसलिए भौतिक जगत का ये जो स्वप्न है, छाया छवि है। किसेर संसारे छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी बिथा दिन जाए। ये यहाँ ममता करके फालतू टाइम नष्ट हो रहा है। किसी संसार ही छायाबाजी प्राय, ये छायाबाजी है, सिनेमा है, लेकिन फिर भी इसको ममता कर रहा है। मान लीजिए कोई सिनेमा देख कर रोता है सारा दिन रात, तो आदमी क्या बोलेगा उनको? सिनेमा देखा है, ठीक उसी टाइम तेरा आँख में पानी आएगा, तो उसके बाद 2-4 महीना रो रहा है उस सिनेमा देखकर, आदमी क्या बोलेगा उनको? सिनेमा देखने के लिए रोया, ठीक है, इमोशनली चल रहा है, लेकिन वह देखकर सारा महीना भर रो रहा है, कैसे लगेगा? तो इसी तरह ये जो सिनेमा है, यह वृथा चिंतन करके वृथा दिन जाए। केवल दिन जाए नहीं, रात भी जा रहा है। इतना कैसे? ये दो पतन की बने, उसके पहले कुछ होना चाहिए।
किसी संशय ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করে বিধা दिन जाए। उसके बाद क्या आते हैं? इसके पहले इससे ओके ये देव पतन হবে হলে কি রবে আমার কেহ সুখ नहीं दिवे पुत्र परिवार। फिर वो बताते हैं जब ठीक है सिनेमा नहीं मानते हैं, ये कई सिनेमा तो ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद ये देह को कोई जो हमारे प्रिय व्यक्ति है, जो पत्नी क्या बोलते हैं, लड़की क्या बोलता है, तुम उस स्वर्ग में जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जीवात्मा जाने के बाद एक घर में रह सकते, एक रात नहीं रह सकते, और जल्दी जल्दी शमशान में लेके जाओ, कोई सुख नहीं देगा वो, मैं तो वो शरीर को कोई सुख नहीं देगा। हाँ क्यों ये देव पतन होले मृत्यु होने से क्यों सुख नहीं देवे, कोई सुख नहीं देगा। यह तक पुत्र परिवार, पुत्र भी परिवार, स्त्री कोई सुख नहीं देगा। वो क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी लेके जाओ, क्यों? ये से भागाओ, उस तो शब्द बोलेगा नहीं, बोलेगा सत्कार करो, लेकिन अंदर की बात है भाई जल्दी लेके जाओ, फिर खाना बनाना पड़ेगा, कौन खाएगा? इस तरह सारा दिन इधर में रहेगा, खाना पीना नहीं होगा, भूखा मर जाएंगे। हाँ तो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी लेके जाओ उतना अच्छा है। क्यों सुख नहीं देवे पुत्र परिवार, पुत्र परिवार का कोई जो हमारा सबसे प्रिय है वो भी सुख नहीं देगा। फिर भी हम गौरदेवेर मतो आमी करी परिश्रम। किस तरह परिश्रम कर रहा है? गाधा के तरह। कार लगी या तो करी ना खुचिले भ्रम, किसके लिए कर रहा है सोचते ही नहीं। प्रभुपाद बोलता है गाधा धोबी का कपड़ा लेके जाता है, खुद का कपड़ा नहीं है। सारा दिन कपड़ा पहनता, खुद का कपड़ा नहीं है, इसीलिए उनका गाधा है। और इतना बुद्धि कम है, उनका नाम तो गाधा है, उनका मालिक के भी उस तरह वॉशरमैन है, धोबी है। गौरदेवेर मतो हमें करी परिश्रम, यह तो परिश्रम है, कार लगी या तो करी, किसके लिए कर रहे? वो सोचना भी नहीं चाहिए भाई, मैं इतने तो परिश्रम किसके लिए कर रहा है, सोचना तो चाहिए। हमें जो कुछ कर रहा है एक बार तो सिर्फ बैठना चाहिए, किसके लिए कर रहा है। कोई आदमी 200 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा है, भाई कहाँ जा रहा है? इस सोचने का टाइम नहीं, कहाँ जा रहा है टाइम नहीं सोचने का, खूब ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उनको सोचने का टाइम नहीं कहाँ जा रहा है, वो ठीक है क्या? तो उसी तरह हम गाधा के तरह परिश्रम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है वो नहीं पता है। कार लग गया तो कोई ना कुछ लोग, दिन रात दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा बस। दिन कौन सा काम में जाते हैं? यह तो भक्ति ठाकुर का है, दिन जाए मिशा काजे निशा निद्रा बस, रात। और भागवत में कैसे लगाते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, निद्रिया हियत नक्तंग व्यवायन चबावय, रात सोना और जोनो काम में जाते हैं। और दिवाचार तो है राजन कुटुंब भरण, दिन कौन सा काम में जाता है? कुटुंब भरण। जो अर्थ है राजन, दिवाचार तो है राजन, पैसा कमाना और इसी तरह का पालन, बस दिन रात। नहीं भाभी मरण निकटे आसे बसे, हम एक बार नहीं सोचते एक दिन मरना पड़ेगा। इसको कौन सा फिलोसफी बोलते हैं? मृत्यु के बारे नहीं सोचना, मृत्यु के बारे नहीं सोचते, उसको कौन फिलोसफी बोलता है? हाँ प्रभुपाद कौन सा फिलोसफी बोलता है? प्रभुपाद रेविट्स फिलोसफी, सुना नहीं प्रभुपाद के पुस्तक में? रेविट्स फिलोसफी, शेर आ रहा है और रेविट आग बंद कर, नहीं मेरा सामान नहीं है,
क्या बाघ आ रहा है, आग बंद करने से चला जाएगा? बच जाओगे क्या? खरगोश जब देखते हैं बाघ आ रहा है, आग बंद कर देते हैं, मेरे सामने बाघ नहीं है, ये से बाघ आकर नहीं खाएगा। तो इस तरह भौतिक जगत का आदमी मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते। अरे साधु लोग केवल मृत्यु मृत्यु बोलते हैं, और लक्षण है ये बात। हाँ, अच्छा बात कहो कुछ। मोटिवेशन। हाँ, आप फ्लाइट में चढ़ने से क्या ट्रेनिंग देता है? फ्लाइट में चढ़ने पहले बोलता है कभी भी हवा कम हो सकते, एक्सीडेंट हो सकते, पानी में उतरना पड़ेगा, केवल बुरे बुरे बातें बोलता है उसने से। गाड़ी ड्राइव करने के पहले क्या सिखाते हैं? यह करने से एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे, तब क्या करोगे? गाड़ी खरीद करने बोले यह एयर बैग आ जाएगा, एक्सीडेंट होगा, यह होगा। वो मरने से बचाने के लिए कल बात करते हैं। तो इस तरह नहीं है, बुरा बात है, जानना चाहिए। लेकिन इसीलिए वास्तव में देखें, शास्त्र का सार क्या है? जगत में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम। इनमें से किसी श्रेष्ठ कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकते। क्यों? आप देखो, दो जो व्यक्ति को चर्चा चल रहा है, एक है सुनने वाला कौन है? परीक्षित महाराज, सारे पृथ्वी का राजा, जिनको भगवान ने खुद ने मातृगर्भ में रक्षा किया है, और जिनको दादा पिता सब कृष्ण का महान भक्त है, सारा पृथ्वी के राजा, अशपत्न रिद्धम, संपत्ति कोई कमी नहीं है, शत्रु नहीं है, यह तो इतना शक्तिशाली है, कोली को दमन किया था। इस तरह राजा ने संसार छोड़ कर गंगा के तट पर बैठ के मरने के लिए, और दुनिया में और कुछ चाहिए उनको? जो व्यक्ति इस तरह स्थिति से सब कुछ छोड़ के मरने के लिए गया है, उनका और कुछ चाहिए? तो वो व्यक्ति यदि कुछ चाहना है, कुछ सुनना चाहता है, तो वो विषय कौन सा है फिर? क्या नहीं बजे? और चर्चा कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी, जिसका कापरा भी जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति कापरा खाना जरूरत नहीं है, और जो व्यक्ति पोजीशन वो सब छोड़ के आते हैं, वो दोनों व्यक्ति के बीच में जो चर्चा है, कोई साधारण विषय है? कौन धर्म में इस तरह हाई फिलोसफी हो सकती? इसीलिए पूर्वज बोला अलग अलग धर्म है, पॉकेट डिक्शनरी है, सनातन धर्म ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बीच में चर्चा है, कौन सा लेवल में? और विषय क्या उठाया परीक्षित महाराज? क्या विषय उठाया? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, खास करके अभी जो मर रहा है। तो विषय था अभी जो मर रहा है उनको लिए क्या करना चाहिए। अर्थात उन्होंने बोलते जीवन का लक्ष्य आर्ट ऑफ डाइंग। तो सर्वश्रेष्ठ दर्शन क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। बेस्ट फिलोसफी है आर्ट ऑफ डाइंग, किस तरह मरना चाहिए। क्यों भाई? हमारे जिंदा 50 साल 100 साल, लेकिन मरने के बाद करोड़ करोड़ साल है, तो किसके लिए काम करना चाहिए? अब ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में 2 घंटा के लिए ट्रेन में है, तो वो ट्रेन को सीट को सोना से बनाना चाहिए, और जब घर में रहेंगे उसको रिपेयर करना चाहिए। पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए? किसके बारे छोड़ना चाहिए? वो 2 घंटा बैठ के केवल ट्रेन का सीट को कैसे इसको कर सकते हैं ना, कि वह बैठ के घर के बारे चिंतन करना, घर में क्या करना चाहिए, कौन करना चाहिए। तो उसी तरह ये 50-100 साल में उसके लिए उनको चिंतन करना चाहिए, अनंत काल जहाँ वहाँ चिंतन करना चाहिए। अर्थात ट्रेन में बैठ के ट्रेन को चिंतन करना चाहिए, और ट्रेन से उतर करके कहाँ जाएगा, कौन सा चिंतन करना चाहिए। बोले तुम गाधा है, ट्रेन में बैठ के मजा करो ना, क्या चिंतन कर, कहाँ उतरना है। कोई आगे से ट्रेन में कौन बोलेगा? हकार बोलेगा इस तरह चीज, अरे अभी ट्रेन में बजे मजा कर रहे थे, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, भूल जाओ कहाँ उतरना है। कौन बोलेगा? कौन इस तरह बात बोलेंगे? अभी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, फ्रेंड है, सब चिंता कर भाई अभी 2 घंटे उतरना है, हाँ कहाँ उतरना, बात करो, चलो वह जगह उतर, कहाँ जाएंगे, कौन गाड़ी पकड़ेंगे, कहाँ खाएंगे। और उसी ने हकार उठ के बोले
कोई चिंता नहीं है, दुनिया बहुत लंबा है, मैं ये लेके आया, वो इंजेक्शन देने के बाद दवाई सील करते हैं। तो उसी तरह जो आपको भूलाता है उतरने के बाद कहाँ जाना है, वो कौन है? आपका कोई शत्रु है, भूलाता है कहाँ जाना है। उसी तरह जो आर्ट ऑफ डाइंग के अगेंस्ट में बात करते हैं वो आपका शत्रु है। जीवन का लक्ष्य है आर्ट ऑफ डाइंग, कहाँ मृत्यु के बाद कहाँ जाना। आर्ट ऑफ लिविंग जीवन का लक्ष्य नहीं है। शब्द जिंदा रहता है, कौन नहीं आता है। जो आप जो आर्ट ऑफ लिविंग है, क्या एक हाथी के तरह खा सकते, कबूतर की तरह यौन संग कर सकते? आत्मरक्षा करने के लिए दूसरा पशु से आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है, आपको बंदूक चाहिए। कौन सा प्राणी के बंदूक लेके युद्ध करते हैं? आपको ज्यादा जुकाम हो गया, माफलर जाना पड़ेगा। कौन सा प्राणी में माफलर है? जीराफ इतना बड़ा लंबा गला है, उसका शदीद जुकाम को भी नहीं है, टॉन्सिल को भी नहीं आता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? वास्तव में आर्ट ऑफ डाइंग है। मछली पानी में रहता है, कुछ ठंडा लगा, सुना कभी जुकाम हुआ? हाँ, आपको आर्ट ऑफ लिविंग है, बोतल का पानी पीना पड़ेगा। शुगर देखो ड्रेन में खाता, इम्यूनिटी कितना ज्यादा है। जीवन का लक्ष्य आर्ट ऑफ डाइंग। तो नहीं भाभी मरण निकटे आछे बसे, हम सोचते नहीं एक दिन मरना पड़ेगा। सोचना चाहिए एक दिन मरना पड़ेगा, कैसे मरेंगे, वो जीवन का लक्ष्य है। नहीं भाभी मरण निकटे आछे बसे, हम कभी सोचते नहीं एक दिन मरना पड़ेगा। नहीं, पहले सोचो एक दिन मरना पड़ेगा। ट्रेन के तरह एक दिन उतरना पड़ेगा। कहाँ उतरेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, वो चिंतन करो। भालो मंद खाई हेरी परिचिंताहीन, नहीं भाभी ये देह ছাড়িব কোনদিন। भालो मंद खाई हेरी, हेरी अर्थात देख रहा है, भालो मंद खाई, कभी अच्छा खाता है, कभी बुरा खाता है। हेरी, आँख में बहुत अच्छा चीज देखो, बुरा चीज नजर में आता है। परिचिंताहीन, परी अच्छा दामी कॉस्टली कपड़ पहन रहा है, चिंते नहीं है ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। बस यह सब है। नहीं भाभी ये देहो सारी, एक कोई सोचते नहीं ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरत। अविरत अर्थात हाँ, विरति नहीं, अविरत, कंटिन्यूअस। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरत, दिन रात। देहो गेहो, देह अर्थात शरीर, गेह अर्थात गृह संपद, कलत्तर रिश्तेदार। सारा दिन रात केवल वही चिंतन है, देहो संपद और रिश्तेदार। जागी से हृदय मोर बुद्धि करी हत, जागी से हृदय मोर बुद्धि करी हत, शब्द अर्थ क्या है? हमेशा वो चिंतन आ रहा है। जिस तरह मान लीजिए अभी परीक्षा, कल परीक्षा, पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करने का हमेशा है। वो क्रिकेट के मैच के बारी आता है, नहीं पढ़ पाता। कल क्रिकेट है, कौन आउट हो गया, कौन रन आउट हो गया, हाँ कौन बोल्ड हो गया, कब कब वही चिंतन आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर पाते है। ये वो उधर में बुद्धि जाना ही नहीं, पुस्तक समन में है, ध्यान उधर में जाते ही नहीं। कोई पिता माता देखा, क्या तो बुद्धि नाश हो गया, क्या है उसके अंदर, है क्या, पढ़ो। तो अर्जुन, तो उसी तरह देहो गेहो कलत्यादि चिंता अविरत, केवल दिन रात वही चिंतन कर रहा है। यदि मान लीजिए कोई बकरा घास खा रहा है, पास में एक बकरा घास काट रहा है, वो घास का वाह कौन सा घास पहले खाएंगे, इसका कौन पहले खाएंगे, वो चिंतन नहीं कर रहा है। पास में कौन का स्त्री बकरा है, उसका संग करेंगे, केवल वही चिंता कर रहा है। लेकिन पास में उनका काटेंगे, वो चिंतन नहीं कर रहा है। तो बुद्धि ठीक है क्या उनका? नाश है। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरत, दिन रात केवल चिंतन कर, जागी से भी हृदय मोर, हमेशा केवल वही चिंतन आ रहा है। असली बुद्धि नाश हो गया है। असली बुद्धि नाश होने के कारण मृत्यु हो रहा है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे वो चिंतन नहीं आ रहा है।
हाय हाय नाही भाभी अनित्य ये सब अर्थ क्या है? ये सब कौन सब? ये सब कौन सब? हाँ, वही पहले लाइन पिछले, देहो गेहो कलत्रादि। देहो अर्थात शरीर, गेहो अर्थात संपद, घर संपद, कलत्रादि रिश्तेदार। हाय हाय नहीं भाभी अनित्य सब, ये जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो अनित्य है, तो हमें नित्य वस्तु के लिए सोचना नहीं चाहिए। हाय हाय नहीं भाई अनित्य सब, जीवन विगत कथा रही वैभव। ठीक है, इसका हम अनित्य नहीं मानते हैं, लेकिन आप जब मर जाओगे तब आपको कितना मदद कर सकती है चीज? जब मर जाएंगे तब को कितना मदद करेंगे? मर जाने के नहीं, इसके पहले कोरोना ने हमको बहुत सिखाया है। मरने के पहले कोरोना होगा, कोई आके मदद करेंगे आके? हाँ, रिश्ते मरने के बाद भी देखने, बॉडी डिटेक्ट करने के लिए नहीं आते हैं, क्या हालत होगा। हॉस्पिटल में फेंक दिया तो देखना तो दूर के बाद, मरने के बाद डॉक्टर आके बोलते हैं ये आपका बॉडी की नहीं है, आप तो डिटेक्ट करो। बोले नहीं आप लेके जाओ। बोले आप केवल बताओ ये हमारे रिश्तेदार है, जला दो, हम तो करेंगे, लेकिन केवल आके देखो, शनाख्त तो करो ये हमारे आपका रिश्तेदार है। वो जरूरत नहीं, हमको क्लेम नहीं करेंगे। जाओ, वो मरा कि नहीं मरा वो भी सुनना नहीं चाहते, देखने। उनका रिश्तेदार मरेगी कि नहीं मर गया वो भी देखना नहीं चाहते हैं। इतना प्रेम है, डॉक्टर ने बोल के मर गया तो फेंक दो। दूर से देखते रहे वो मर गए, नहीं कि भाई मरने के पहले हॉस्पिटल पैसा कमाने के पहले लिए उसको फेंक दिया, क्या मर गया कैसे देखते हैं क्या? वो तो देखना था दूर के बाद, केवल इतना देख के बोलना है हमारे रिश्तेदार डेड बॉडी लेके जाओ, उतना तक नहीं जाता है। इतना है प्रेम। जीवन विगत कथा रही वही भाव। क्या होगा? श्मशाने शरीर मामा पड़िया रहिवे, विहंग पतंगता विहार करेंगे। मृत्यु के बाद ये शरीर कहाँ पर रहेंगे? शमशान में पर रहेंगे। और इसके बाद विहंग पतंग शब्द अर्थ क्या है? विहंग अर्थात पक्षी, पतंग अर्थात इंसेक्ट। विहंग पतंग अभी तो आंखों के सामने मत्स्य जाने नहीं दे रहा है, लेकिन तब ये शरीर पक्षी और मेरे क्रीड़ास्थली, खेलने का जगह होगा, तब कुछ नहीं बोल पाएंगे। शमशाने शरीर में पड़िया रहिबे, विहंग पतंगता विहार करिबे। इतना ही केवल नहीं, कुत्ते सियाल यदि हमको देखेंगे तो कितना खुश होगा, वाह महाफेस्ट। कुकुर श्रृगाल सब आनंदित हुए, महोत्सव करिबे आमार देह लई। कुत्ता शियाल यदि देखेंगे वह परा है, वाह किसका मुख दिखा, सुबह नींद खुल गया है, वो शरीर लेकर महोत्सव करेंगे। अभी जो शरीर के हालत है, जे देह रही गति तार अनुगत, जो देह का स्थिति होगा, विहंग पतंग विहार करेंगे, कुत्ते सियाल फिस्ट करेंगे। जो शरीर की एक गति है उनका हम लिए सब कुछ कर रहा है। तो यह शरीर का और कौन सा है? संसार वैभव बंधु जनजत, ये इसका तो क्या बोलता है? संसार वैभव बंधु जनजत क्या बोलना चाहता है? वो जो पहले तीन चीज बताया ना, एक है देहो गेहो कलत्रादि, देहो गेहो कलत्रादि। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास? हाँ, देहो। जो देहो का हालत ये हुआ है, कुत्ते सियल का फिस्ट होगा, तो बाकी गेहो और रिश्तेदार के बारे और व्याख्या करना जरूरत है? क्या लग रहा है? और सुनना चाहते हो इसके बारे? जरूरत नहीं है। देहो का यदि ये हालत होगा तो फिर गेहो उसी ने बोलता है, जे देह रहेगी तार अनुगत संसार वैभव। ये संसार गेहो बंधुजन कलत्रादि, इनके बात करना क्या जरूरत है? तो एक बात से पता चल गया जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए।
अतएव क्या करना चाहिए? इतना सुनने के बाद क्या करना, कंक्लूजन क्या करना चाहिए? अतएव ये सारी चीज जो हम आसक्त है माया है, ये माया मोह है। माया क्या है? जो ठीक नहीं उनको भी आसक्त होना है। अतएव माया मोह सारी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण सन्मान। अतएव हे बुद्धिमान व्यक्ति, इस तरह माया मोह से होकर नित्य तत्व जो कृष्ण भक्ति है इसको संधान करना चाहिए। तो ये आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो समाज बकरा के समाज की तरह है, उसका बोली का पाठा हो गया है, वो घास खा रहा है, वाह ये मुझको कितना प्रेम करता है। क्यों प्रेम कर रहा है? काटने के लिए। हाँ, हमारी कंपनी कितना पैसा दे रहा है, बोली का पाठा बना दिया। कितना पैसा देते हैं? क्यों ज़्यादा पैसा क्यों देते हैं? ज़्यादा टाइम भविष्य नौकरी करो और 10,000 बढ़ा देंगे और 2 घंटा एक्स्ट्रा दो, और 10,000 बढ़ा दो और 2 घंटा एक्स्ट्रा दो, बोली का पाठा बनो। समय कौन ले रहा है? वो जिंदा रहने से मृत्यु है। सारा दिन ऑफिस में काम करो, क्या कर रहे हैं? तो मन है अच्छा है। सुख कहा है। इसलिए माया मोह से मुक्त होना चाहिए। माया मोह सारी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण सन्मान। ये जो सारा जगत बोली के पाठा की तरह है कि पता ही नहीं है मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। ये हमारे जिम्मेदारी सबको समझाना है। भाई तुमको घास खिला रहा है थोड़ा टाइम काटने के लिए, ये तो मुर्गा है। बड़े लोग का मुर्गा क्यों पालते हैं? अच्छा क्यों खिलाते हैं? मोटाएंगे, काट के मजा करके खाएंगे। तो ये तुमको ये भौतिक से प्रेम करते हैं, इसको मुर्गा पाल रहा है तुमको। काट के खाएंगे। बड़ लोकेर मुर्गी पोषा, हाँ बड़ लोकेर भालोबासा, मुसलमानेर मुर्गी पोषा। अतएव माया मोह सारी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण सन्मान। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। हाँ, और जब ये चीज समझ गया, ठीक समय में है, युवा काल में है, तो अभी कुछ करने का टाइम है। जगत में आदमी दुखी है, साहब भगवान का भूल कर कितना दुखी है। भगवान के भूल के दुखी है, इसीलिए उनके दुख से उनको मुक्त करना है कृष्ण भक्ति दान करके। ये जीवन का अनित्यता समझाना है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए थे, उन्होंने सरल पंथा दिया है कृष्ण भक्ति का, और श्रील प्रभुपाद ने और सरल कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु के समय तो गोस्वामी लोग वृंदावन में जाके पेड़ के नीचे रहते थे। अभी श्रील प्रभुपाद बोले नहीं, पेड़ में जरूरत नहीं है, बिल्डिंग में रहकर ही भक्ति कर सकते, और सरल कर दिया है। और भक्ति में क्या करना है? 3 ही काम करना, नाचना, गाना और खाना। क्या कठिन है? सबको इससे आनंद देना, सबको कृष्ण भक्ति आनंदमय जीवन देना है। सबको आता है, भगवान का नाम करो, डांस करो, प्रसाद खाओ, बस आनंद में रहो, और ये दुनिया से छोड़कर एक दिन भगवत धाम चले जाओ। कष्ट क्यों? ये शिक्षा हमें ग्रहण करके सारा जगत की शिक्षा देना है, जीवन का लक्ष्य है। भारतवर्ष में जन्म होने के कारण हम भाग्यशाली है। हाँ, ये दर्शन समझना हमारे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम बचपन से सुन के आ रहा है, नया चीज़ नहीं है। दूसरा व्यक्ति उनका धर्म त्याग करके ग्रहण करा, उनके लिए कठिन हो सकते, लेकिन हमारे लिए क्या कठिन है? तो फिर हम यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं है। महाप्रभु इसलिए क्या बताया? भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
भारत में जिसका जन्म हुआ है उनका जीवन सार्थक करना चाहिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करके, और दूसरा का उपकार करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ उपकार है। कैसे सर्वश्रेष्ठ उपकार? ये भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका पाप कर्म में रत रहना पड़ेगा। आप पाप कर्म करने नरक में जाकर कितना कष्ट भोग करेंगे। तो वहाँ से बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई एक बच्चा एक दिख जा रहा है, हम देख रहे हैं आगे जाकर मृत्यु होगा, तो उसको नहीं बचाना चाहिए। तो इस तरह समाज जो दिशा में जा रहा है ये कर्म के नरक जाएगा, तो उसको बचाना है कृष्ण भक्ति प्रचार करके। ये हमारे पास हमारा समय है कृष्ण भक्ति प्रचार करके पढ़ने के लिए। हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ है। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास फिलोसफी है, फिलोसफी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पुस्तक है, वैष्णव है, मानी मैन पावर सब कुछ है, और युवा काल में हम जुड़ गया है, सब फैसिलिटीज है। उसके बाद यदि नहीं ग्रहण करेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? बार बार सुनना चाहिए। रियलाइजेशन होगा बार बार सुनने से होता है। एक कारण हो सकता है हम ज़्यादा दुख कष्ट भोगा नहीं, इसीलिए। लेकिन पूर्वत कहता है चालाक से के देखे मूर्ख से के ठोके। जिस तरह आप बोलोगे जहर पीने से मृत्यु होगा, रियलाइजेशन क्यों नहीं आता है? कैसे रियलाइजेशन कैसे आएगा? मरने के बाद रियलाइजेशन आएगा। तो जो बुद्धिमान है देख कर सीखता। आपको भी जहर पिया? क्यों नहीं पिया? सुन कर सीखा। कभी चोरी किया? क्यों नहीं किया? सुन कर सीखा। चोरी करने जेल में जाना बस। मर्डर किया? करोगे तुमको, कि क्यों नहीं करते हैं? एक मकसद को मार देते हैं, लेकिन आदमी को क्यों नहीं मारते हैं? मकसद मारने के जेल में नहीं जाना पड़ता, आदमी मारेगा। वो रिलेशन ठीक है ना, ये भी रिलेशन होना चाहिए। क्या किसी को पाप अपराध से कैसे हम मुक्त हो सकते? पाप अपराध क्यों करते हैं? अज्ञता के कारण। भक्ति रसमृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से वर्णन कर रहे हैं। ये कृष्ण भावना है, सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कर्म है। क्यों? आदमी दुनिया में कष्ट भोग रहा है, और कल्याणकारी कर्म क्या है? सारे दुख कष्ट हटाना है। तो दुख कष्ट हटाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन कोई एक दवाई है, क्योर और प्रिवेंशन दोनों ही होते हैं, वो एक कृष्ण भावना है। इस तरह दवाई है, प्रिवेंशन और क्योर दोनों है इसके अंदर। कैसे? कष्ट भोग रहा है, उसका कारण है पाप। पाप करने के पाप क्यों करता है? ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञता। अज्ञता के कारण पाप करते हैं। और कृष्ण भावना रूट में काम करते हैं, अज्ञता का नाश करते हैं। कृष्ण भावना जो रूट में जाके काम करते हैं, अज्ञता नाश करते हैं। तुम ये दुनिया भगवान का है, तुम भगवान का दास है। भगवान दास होने के कारण मालिक और मालिक का जो परिवार है उनकी सेवा करना है। तो ये भावना होने के कारण वो व्यक्ति पाप करेगा नहीं। ये ज्ञान उदय होने से पाप करेगा नहीं, पाप करने कष्ट नहीं होगा, अपराध नहीं करेगा। जिस तरह मान लीजिए आप
यहाँ से दिल्ली जा रहा है, एक आदमी आके बैठना चाहता है, भागो ऐसे, भाड़ा भाड़ दे, लेकिन बाद में पता चला प्रेसिडेंट है। तो अभी कहीं लारी अपराध हो गया, पाप हो गया है। क्यों किया? अज्ञान कारण। जो पहले से जानते थे प्रेसिडेंट है, इस तरह बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो गलती कहाँ से हुआ? अज्ञता के कारण। तो ज्ञान का उदय करना है। ये कृष्ण भावना वो ज्ञान देते हैं, अज्ञता का नाश करते हैं। कैसे जानता है? ये ज्ञान देता है भगवान पिता है, ये संसार सब उनका संतान है, हम उनका दास है। शुरू से ज्ञान देते हैं, संबंध का ज्ञान देते हैं, और बाद में गलती नहीं होते। ओके। जिस तरह मान लीजिए कोई शराब पीते हैं, पता नहीं है शराब पीना पाप कर्म है, तो वो ज्ञान जो देगा ना शराब पीना पाप है, कैसे है? तो पीने है, पाप किया है। लेकिन समझना भाई ठीक है, तुमको पाप नहीं लग रहा है, लेकिन ये पीने के बाद जो काम करोगे वो तो पाप है, तो वो तो पाप ही हो गया ना। शराब पीने पाप किया है, लेकिन पीने के बाद जो काम करोगे वो पाप होगा, तो ये पाप कर्म का तो कंटिन्यूएशन है। लेकिन उसी टाइम नहीं, ये तो पानी की तरह, इसके अंदर पाप क्या है? पिया पानी क्या है? कोई जूस पीते हैं, कोई पानी पीते हैं, कोई कोका कोला थम्स अप पीते हैं, तो पीने तो है। हाँ, लेकिन वह करने से जब पाप कर्म किया है, तो ये कारण के लिए पाप कर्म हो रहा था, ये पाप कर्म नहीं है क्या? तो ये ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण भक्ति नहीं करने के कारण, कृष्ण की सेवा नहीं करने के कारण वो पाप करेंगे, तो कृष्ण भक्ति नहीं करना ही पाप है, क्योंकि इसीलिए वो पाप कर्म किया। ये ज्ञान उदय होना चाहिए। हाँ, जो गथत कर्म तो लोकम कर्म बंधन, कृष्ण क्लियर बता दिए, मुझको खुशी करने के लिए कर्म करो, नहीं करके सब पाप कर्म है। कैसे? तुम रास्ता में चलो, पाप कर्म क्यों? हाँ, सरकार में कहा लेफ्ट साइड में, राइट साइड है, राइट साइड क्यों चल रहे हो? राइट साइड चलो, सरकार गलती है, जेल में लेके जाएंगे। नहीं, हम तो रास्ते में चल रहे हैं, तुम रास्ते में चल सकते हो, सरकार का आईन है, राइट से चलने में दंडनीय अपराध है। तो मैं तो जानते ही नहीं, तो नहीं जानना क्या गिफ्ट है क्या? पुरस्कार है क्या? तो पनिशमेंट होगा। तो पहले जानना चाहिए, हाँ रास्ता में लेफ्ट साइड में चलना है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। वाह, हम तो जानते नहीं है, वह मजा में घूम रहा है। लेकिन पकड़ कर जेल में लेके जाएगा। हाँ, और ज्यादा खुश है। देखो, इधर में तो काम नहीं करना, जेल में फ्री खाना मिलता है। की सोचता है? अज्ञान। ओके। तसंग महत्जनी अहं ब्रह्म को जीवित। तो इसमें जो आप बोले, एक मच्छर को मारना पाप है, ह्यूमन बीइंग को मारना भी मर्डर करना वो भी पाप। लेकिन दोनों का पनिशमेंट सेम रहता है या? पनिशमेंट हाँ भगवान का विचार में सेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी देश में विचार तो थोड़ा तो चेतना के मात्रा अनुसार पनिशमेंट होता है। कंट्री का गवर्नमेंट का ये तो उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन भगवान के राज्य में हाँ, जिस तरह देखना, आप कहानी सुनाना। एक समय एक व्यक्ति एक इंसेक्ट को फूटा कर था, तो उन्होंने जमराज ने उनको पनिशमेंट दिया था। अच्छा, क्या हुआ था? जिनको मुंडुक मुनि पूर्व जन्म में वो कहानी इस तरह आता है। एक मुंडुक मुनि एक बहुत बड़ा साधु था, उनके घर में कोई चोर आश्रय लिया था। चोर आश्रय लेने से तो पुलिस जाके पकड़ लिया चोर को। तो मुनि ध्यान कर रहा था, ये सोचे ये चोर का एजेंट है, चोर धार्मिक, उनको भी साथ में लेके गया, उनको दंडशूल में चढ़ाएंगे। तो बाद में राजा को पता चला नहीं वो साधु आदमी है, तो बोले नहीं इनको नहीं करना। लेकिन उन्होंने नाराज हो गया, भाई मेरा साथ इस तरह क्यों?
जमराज के पास गया, क्या है, मेरा क्या गलती था, मुझको क्यों पकड़ करके लेके गया। जमराज बोला पूर्व जन्म में जब बच्चा था ना, वो इंसेक्ट के अंदर एक क्या बोला निडिल खुश दिया, इसीलिए आपको शास्ति दे रहा था, आपको शूल में चराएंगे। तो उन्होंने बोला, तो ये विचार हो रहा था। तो इतना छोटा छोटा विचार तो आप जितना जितना मछली खाया है उतना बार मछली को जन्मना है आपका। वो भी भागवत में कहानी है। एक व्यक्ति पाप कर्म से मुक्त होने के लिए बहुत जगह के पशु हत्या किया और मृत्यु के बाद देखा सारे पशु मनुष्यों का उनका खाने के लिए और बदला लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए सारे कष्ट से मुक्त होने की एक ही तरीका है, कृष्ण भावना ग्रहण करना है। ओके Sometimes we'll do wrong things knowingly, like we know it is wrong, but we do some things. How to overcome? जानबूझकर हम ये गलती करने से समस्या होगा, फिर भी करते हैं, इसका मतलब उसका सीवियरिटी हमको पता नहीं है। जिस तरह मान लीजिए एक गिलास पानी है, ये पीने से पेट खराब हो सकता है, चलो, लेकिन जब पता चले कि मृत्यु होगा तब नहीं पिएंगे। और जो नहीं शराबी नहीं भी हो सकते, डाउट है, तब पी सकते, लेकिन फुल्ली कॉन्विंस नहीं ये पॉइजन है, पीने से तुरंत मृत्यु होगा, तब नहीं करेंगे। तो जो गलती करते हैं इसका अर्थ हमें फुल्ली कन्विंस नहीं है, वो इतना बड़ा पाप है। इसलिए ज्ञान का उदय होना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वैदिक शास्त्र ग्रंथ में वही वर्णन आता है जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है। जिसका देश में अब अमेरिका में जाओगे, पहले जाके सुनना चाहिए नहीं ये देश का आइन क्या है, और जाके सुनो बोले इधर में राइट से चलना है। अरे उल्टा है इंडिया ना, हम क्यों मानेंगे, अमेरिका जाओगे मानना ही पड़ेगा, राइट से में चलना पड़ेगा। वो का ही नहीं हुई है। तो उसी तरह भगवान का राज्य में कुछ कानून है, इसको मानना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते नहीं ना, हम तो इंडिया में गाड़ी चलाते लेफ्ट साइड में कंफर्टेबल है, चलेगा नहीं। हमारा जैसे प्रभुपाद लॉ ऑफ नेचर बुक में लिखते हैं, जैसे उसमें चित्र भी बना हुआ है, जैसे व्यक्ति जो गाय को काट रहा है तो नेक्स्ट लाइफ में जो व्यक्ति है वो गाय बनेगा, गाय व्यक्ति बनेगा। तो जैसे तो इसमें तो मतलब ऐसा है महाराज, जैसे अगर अभी जितना भी काउस हाउस जो हो रहा है तो इसमें मतलब ये है कि इस फिलोसफी के हिसाब से कि वो प्रीवियस लाइफ में व्यक्ति थे उन्होंने गाय को काटा है, तो वो अपनी रिएक्शन का रिएक्शन भोग रहे, तो उसमें फिर ये सिन कैसे होगा? कौन सा? मतलब जैसे लॉ ऑफ नेचर हम देखते हैं। हाँ, अगली बार गाय तो ये तो सजा हो गया ना। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइफ मतलब सोल कैसे होगा, मतलब तो रिएक्शन इक्वल हो जाएगा? हाँ, इक्वल तो नहीं होगा ना, केवल तो गाय काटने मछली खाया, उसके बाद आपको मछली होना पड़ेगा, अंडा और बन इक्वल का हो, केवल एक ही काम किया गया। केवल एक ही काम किया, नहीं कितना काम किया है। इसीलिए कितना बार आना पड़ेगा गारंटी नहीं है। तो इसलिए पूरा बचने के लिए कृष्ण भावना ग्रहण कर, पूरा माफ हो जाएगा। ओके, और कुछ? महाराज एक प्रश्न मतलब स्टूडेंट्स के लिए, आपने स्टूडेंट को लगता है कि 16 वाला करना टाइम वेस्ट है, इसका क्या समाधान है? না, जिस तरह বাংলা में कहता है বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাথা, নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা। समझ में आ रहा है? विश्राम जानते हैं, काजेर अंग, इसका अर्थ क्या है? विश्राम काजेर अंग अर्थ क्या है? काम का एक पार्ट है। विश्राम काजेर अंग, विश्राम की काम करने के लिए वो काम ही है, विश्राम भी एक काम है।
বিশ্রাম কাজের একসাথে গাথা। ঠিক যারা नयनेर अंश যেমন नयनेर पाता, ये आँख का पाता भी आगे है, लेकिन उनका काम क्या है? बंद करना है। तो बंद, वो तो आँख का काम देखना है, बंद करना है क्यों? ये नहीं होता तो आँख नष्ट हो जाता। तो इसी तरह जिस तरह रात में सोना है, ये टाइम नष्ट नहीं है, उस शरीर को रिफ्रेश करने। तो इसी तरह हमें ये जो भगवान का नाम करना है, ये क्या है? पाप कर्म से मुक्त होकर ज्ञान पूर्व तो ज्ञान में स्थित होना है। आप बहुत, मान लीजिए आप बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो गया और चरित्र खराब होने के लिए कारण पाप कर्म किया, जेल में चले गया, तो अच्छा होगा क्या? नींद में तो बहुत पढ़ाई किया हूँ, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो गया, लेकिन चरित्र नहीं हुआ तो जेल में चले गए। लेकिन अब यदि पहले से चरित्र गठन होता था, पाप कर्म नहीं करता था, तो कितना सुखी रह सकते थे। तो ये भगवत भक्ति करना, 16 माला जप करना, भगवान भक्ति करने से आपको इतना पढ़ाई करके डॉक्टरी करना क्या है? आनंद में रहना ना। डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद आनंद करना, तो अभी से आनंद करो ना, उसके बाद क्यों? डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद, और वो आनंद क्या है? फिर पैसा कमा के फिर बाजार करो, उसके बाद खरीद करके लेकर, उसके बाद आनंद है। लेकिन भक्ति करना है, जिस दिन चाले को उसी दिन से आनंद, इतना लेट क्यों? और परिणाम करना, हाँ, समय नष्ट नहीं, समय का उपयोग है। ये करने से क्या होता है? हमें जीवन का उद्देश्य पता चलता है, करना क्या है। जिस तरह मैंने गाड़ी चलने के पहले 1 मिनट आप जीपीएस देख लेना कहाँ जाना है, कि टाइम नष्ट है क्या? 1 मिनट ठीक से देख लेना जाना कहाँ है, जीपीएस सेटअप करो। ये जीपीएस सेटअप करना टाइम नष्ट? और जीपीएस के टाइम नष्ट, टाइम नहीं देगा तो फिर सारा दिन घूमो। तो ये 16 माला जप करना डेस्टिनेशन है, सेट करना है, जाना कहाँ है। हाँ, और हम देख सकते हैं जीवन में जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ है, हाँ, बहुत बड़े प्रेसिडेंट, नोबेल लॉरेट हुआ है, उनका गति क्या है? और हमारे चैतन्य महाप्रभु, आचार्य गोस्वामी लोग, प्रभुपाद, उनका डेस्टिनेशन क्या है? क्या बनना चाहते हैं हम? कौन सा बनना चाहते हैं? प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण देते हैं। कलकत्ता में चित्तरंजन स्क्वायर है, चित्तरंजन पॉलिटिशियन, अभी उनका मूर्ति है, स्टैचू है, वहाँ पर कौआ आके उसका चूरा बनाते हैं पूरे 1 साल। और उनका जिसका जन्मदिन है, उसके पहले दिन सुई पैरा के बाथरूम सफाई करके, झाड़ू देकर सफाई करते हैं। ये उनका अभिषेकता है। ये बहुत ही का आदमी का ये सम्मान है। और भगवत भक्त के सम्मान है, प्रभुपाद का कितना सम्मान। पॉलिटिशियन का, हाँ, पिक्चर कहाँ झूलते हैं? अखबार में घूमते हैं। और भगवत भक्त का नाम, पिक्चर गीता भागवत में रहता है। उनका सम्मान देखो क्या। तो कौन सा जीवन बिताना चाहते हैं? एक एग्जाम्पल देखो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? श्रेष्ठ कवि कौन है? आप लोग तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कवि कौन है? पोएट, हाँ, कौन है? बताओ, किसी को पता नहीं? बताओ, आपका अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? एक भी याद नहीं। अच्छा, श्रेष्ठ किसको मानेंगे आप? जिसको कविता हर जगह में गया, हर देश में हर व्यक्ति गाते हैं। इस तरह कोई कवि है जिसका कविता हर देश में गाते हैं और हर व्यक्ति गान गाते हैं? मैक्सिमम, हर नहीं, मैक्सिमम व्यक्ति गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर है, सुंदरी जो गाते हैं, हर दुनिया में कौन देश नहीं है जहाँ पर नहीं गाते हैं। आदमी डांस करते हैं उनके गान के। कौन कवि है उनके गान गा के डांस करते हैं? और
प्रसाद खाने पर शरीर अविद्या जल गाते हैं, किसका कविता है? भक्तिवत ठाकुर। पृथ्वी में कौन कवि है जिसको गान इस तरह गाते हैं? लाखों लाखों आदमी शरीर अविद्या जल नहीं गाते सारे दुनिया में। हाँ, कम से कम 3 बार। और फिर भी कौन सा क्रूशियल टाइम है, खाना आ गया फिर भी खाना बंद करे, गाओ पहले। कितना इंपॉर्टेंट गान है। तो इस तरह दुनिया में कोई कवि हो सकते क्या? बाहर का जगत के कवि इस तरह फेमस हो सकते जिसके कविता का इतना सम्मान करते हैं? भाई खाना आ गया, खाना छोड़ दो, पहले उनका गान गाओ, उसके बाद खाना खाएंगे। दुनिया में कौन कवि के इतना सम्मान हो सकता? क्यों? भागवत भक्ति इतना महत्वपूर्ण है। तो जब हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कितना सम्मान है, कि हम इसको नहीं ग्रहण करते? भौतिक जगत में क्या मिलने वाला है? ओके हरे कृष्ण। गाएंगे इसको थोड़ा। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण नाभ जिनु दुख कहिब काहरे, সংসার সংসার করে মিছে গেল লাভ না হো এলো কিছু ঘটিল জঞ্জাল, কিসের সংসার ছায়াবাজি ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন এ দেহ পতন হলে কি হবে আমার? কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার, গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম,
শত করি না ঘুচিল দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রা বসে নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে ভালো মন্দ খায় হেরি করি চিন্তাহি নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তায় অবিরত জাগিছেরি দয়ে মন বুদ্ধি করি হত হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এষা জীবন বিগতে কোথা রইবে বৈভা শ্মশানে শরীর মম করিয়া রহিবে বিহঙ্গ পতঙ্গতায় বিহার করিবে কুকুর শ্রীগালস আনন্দিত হয়ে মহোৎসব করিবে মারো দেহ লয়ে
যে দেহেরও এই গতি তার অনুগত সংসার ভবয়ার বন্ধু জন যত অতএব মায়ামোহ সারি বুদ্ধিমান অতএব মায়ামোহ সারি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ প্রভু পদ জয় প্রভু পদ जगत विष्णु प्रभुपाद की स्वामी गौर भक्तवृंद की गौर हरे कृष्ण।